Hi friends, Nifty becomes rocket. Nifty breaks 25,700 barriers. That means very bullish situation. In that situation, not only Nifty, few sectors are very interesting, moving positive uptrends, like fast moving consumer goods sector. 762%, 762 point jumped. Not only fast moving consumer goods sector, if you see the pharma sector, infrastructure sector, all are very bullish. But few sector like Nifty IT is continuously downtrend. Nifty metal is downtrend. Why? If you see our portfolio where the Nifty 50 is continuously uptrend continuously, but our portfolios are not giving us such good returns. Today's video, I'll discuss why Nifty is continuously positive moving. Second point is why Nifty IT is continuously downtrend. Third, in that particular scenario, I will discuss a particular sector like defense sector. In that sector, having huge potential capability, I will discuss a important stock. That stock fundamental is not very good. If you see the fundamental, you will not be happy. But if you see the business like clean energy, like इनके साथ जो है cryogenic engine, इनके साथ जो client है ISRO है, DRDO है, Indian Air Force है, different type of missile technologies working with that particular company also having different type of chips, different type of electronic precious instrument that working on space. Their particular instruments also sent in Chandrayaan 2 and Mangalyaan also. That's very interesting. Presently, they are working on AMCA. This is another very interesting. 15,000 crores AMCA working with Adani. So before going anything else, this video is only for educational purpose, no buy sell recommendation. Before investing, please consult yourself or your advisor. Past return, current guarantee future performances. Come to the most important point. If you new in that particular channel, you may subscribe with it. आ जाते हैं सबसे बड़ी most important point के ऊपर. निफ्टी क्यों इस तरह से भाग रहा है? क्यों? One is a consumption. This is unbelievable level of consumption, Indian consumption. This is festive consumption. What do you mean by festive consumption? Last October, November, December, इन 3 महीने में अनबिलीवेबल लेवल का एक्सपेंसेस होने वाला है, मतलब कंजम्पशन होने वाला है, मतलब 14 लाख करोड़ का कंजम्पशन होगा लास्ट 3 महीने के अंदर, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, different analysis have been done on that particular things. First of all, like the clothing, around the clothing for and the wedding, for the electronic instrumentation, automobile, all are the very bullish trend. If you see that just for the garments or the clothing, around 180 lakh to 3 lakh crores expenses will be done on clothing, like trend, etc., etc. Come to the most important point: the shoemaker company like Relaxo, Bata, Liberty, all will be benefited on that part. Come to the most interesting, another automobile sector. Automobile sector is very bullish. If you see the data, this is a very good data up there. Like purchase are increased. That means 1.5 lakh to 2 lakh crores expenses will be done on that particular automobile sectors because the GST down. This is another interesting point. Come to the another point: electronics, electronic instrumentation, IT related things, including your electronic consumer like fridge, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन्स, एवरीथिंग. तो ये सब आपका है. उनके साथ जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा, also different रेस्टोरेंट. सो बेसिकली दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सेम वे देखा इंफ्रास्ट्रक्चर. क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ, जो घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, सो नेचुरली ये भी इंप्रूव होती जाएगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर में परचेस करना स्टार्ट कर दिया है इंडियंस. ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, डिफरेंट. सो दीज आर द पॉजिटिव साइड. Now come to the second very interesting point, that is why IT companies are down. This is important. Why? Basically, one of them is USA. Totally IT markets depend on USA. अब USA और यूरोपियन के ऊपर टोटली डिपेंड किया हुआ है इंडियन मार्केट, इंडियन IT सेक्टर. सर्विस दे रहा है हम लोग. सो अभी यूएसए इन अंडर प्रेशर, ह्यूज लेवल प्रेशर में है. क्यों? नंबर 1 इज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, दूसरा है रेट कट का प्रॉब्लम है, तीसरा है टैरिफ का प्रॉब्लम. अमेरिका इज कॉन्टिन्यूअसली चार्जिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ in different countries like China. 500% tariff get charged starting from November 1st.
इन इंडिया दे चार्ज 50% टैरिफ। सो अब सोच सकते हैं होल यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ चार्ज किया हुआ है। तो बात क्या है, चाइना से जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना महंगा होगा। सो नेचुरली जो अमेरिकन है उन लोगों को 5 टाइम्स दाम देना पड़ेगा, इतना ही महंगा हो गया है। सो क्या करेगा उन लोग, वो सेकंड कहीं पर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो नेचुरली अल्टीमेटली ये इंडिया से भी खरीदे तो उन लोगों को से पहले उन लोगों को $100 देना पड़ता था, अभी उन लोगों को $150 देना पड़ेगा। सो नेचुरली दिस विल मेक द इन्फ्लेशन, इट विल क्रिएट सम इन्फ्लेशन, इट विल क्रिएट सम डिमांड, ह्यूज लेवल ऑफ डिमांड। सो नेचुरली आप सोच सकते हैं कि यूएसए का अल्टीमेट इज नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन, स्पेशली चाइना के ऊपर टैरिफ चार्ज करने के लिए बात बोलने की बात पर से ही टोटली आईटी सेक्टर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रहा है। ये आईटी सेक्टर का मतलब सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, सब कुछ। क्यों? क्योंकि चाइना का पास डिटेल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, मटेरियल सब कुछ है। अब जो वहां पर जो जितना भी, जैसे कि आईफोन आ रहा है मैन्युफैक्चर होके चाइना से, अब जब अमेरिकन ये आईफोन की खरीदना है तो इनको को 5 टाइम्स दाम देना पड़ेगा एक आईफोन के लिए। सो दिस इज वेरी महंगा हो गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द रीजन आईटी सेक्टर इज कंटिन्यूअसली डाउन हो गए। अब आ जाते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज डिफेंस सेक्टर। ये पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, स्टॉक का ultimately very interesting talk. If you see the fundamental of that particular company, you will be frustrated because of their return on equity, return on capital employed, including the promoter, all are in a negative situation. Like if you see the return on capital employed is around 10.75. What they mean by the return on capital employed? How efficiently your investment money will be working on that particular company. That is return on capital employed. If you see the return on equity around 7.51, that is also very frustrating. If you don't know about the return on capital, what is capital, return on capital, return on equity, what is debt to equity ratio, what is PEG, what is P, everything. So if you take a membership around 59 rupees per month for silver membership, if you can also take gold memberships or different other membership like diamond membership for different facilities. So if you want to know about the fundamental, you can take this sort of thing, because I don't have much time immediately to say all the things. Important information जो है, ये जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, fundamental is not very good, that is very true, but in other side is a very interesting key point like the business, इनका जो business है that is fantastic, ये कंपनी का business है अच्छे। तो जो एक जो रिजल्ट, एक स्टूडेंट जो उनका मार्क्स आया है वो फर्स्ट आया है, तो नेचुरली आप सोच सकते हैं कंपनी, ये स्टूडेंट इज वेरी गुड। बट बिफोर गिविंग ए पर्टिकुलर एग्जाम आपको सोचना है एज पर कंपनीज, एज पर स्टूडेंट मेरिट, एज पर स्टूडेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यू हैव टू गेस द कंपनी कहाँ पर जाने वाला है, राइट। कंपनी जो काम कर रहा है एरोस्पेस के ऊपर काम कर रहा है, ये कंपनी जो काम कर रहा है डिफेंस सेक्टर में अंदर काम कर रहा है, ये कंपनी काम कर रहा है क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर, स्पेस रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है कंपनी। इनके साथ साथ कंपनी का डिफरेंट क्लाइंट है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट जो है ब्लूम एनर्जी, ये भी काम चल रहा है। $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है फ्यूल सेल के ऊपर। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पड़ने वाला है। यस, द कंपनी नेम इज एमटा टेक्नोलॉजी। इफ यू सी लास्ट 1 year return was 66%, but if you see the last 5 years return not very good. Ultimately the fundamentals not very good. इनका जो promoter holding है ये भी continuously decreasing, मतलब promoter are selling their stake, but that's not all. If you have to see the different thing like the clean energy part, green energy part, future में ये एक्सलेंट कर सकता है। इनका प्रेजेंट जो है प्रेजेंटली 15,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट जा रहा है, एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये एमटा के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये अल्टीमेटली जो काम चल रहा है एमका के ऊपर काम चल रहा है। एमका का मतलब क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये एमका के ऊपर काम कर रहा है, मतलब डिफरेंट डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रहा है। Ultimately, ये company from beginning, that company working on different of precious electronic instrument, different space electronic instrument, clean energy, nuclear plant, इनके ऊपर काम कर रहा है कंपनी। कंपनी का जो सबसे बड़ी क्लाइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूम एनर्जी यूएसए का। नॉट ओनली दैट, पहले ये कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली वन कंपनी, दैट इज ब्लूम एनर्जी। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं इसको।
अभी ये कंपनी आहिस्ता शिफ्ट करते जा रहा है। कंपनी प्रेजेंट जो क्लाइंट है अनबिलीवेबल लेवल गुड का क्लाइंट है, इंक्लूडिंग इसरो है, डीआरडीओ है, इनके साथ जो है आईएएफ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, भारत फोर्ज है, बहुत सारे लार्सन एंड टुब्रो है, सब कुछ इनका क्लाइंट है जो काम कर रहा है। इनके न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके साथ काम चल रहा है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन ये जो कंपनी चंद्रयान मिशन में काम किया है, इनका साथ साथ मंगलयान मिशन चंद्रयान 2 में काम किया है। इनको जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने भेजा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है प्रोपल्शन, इलेक्ट्रो न्यूमेरिक सब सिस्टम, ये सब काम इन लोग का कर रहा है। प्रेजेंटली ये कंपनी मैनेजमेंट वेरी बुलिश है। प्रेजेंटली कंपनी का फंडामेंट मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कंपनी अल्टीमेटली मार्केट कैप है 6,200 करोड़ का। इनका जो पी है वैल्यूएशन इज वेरी हाई, 102 इज पी, इंडस्ट्रीज पी अराउंड 68, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले ही बताया आपको 10.5 and return on equity 7.51. Sales growth last 5 years was very good, 25.9%. Sales growth is very interesting, very good, but ultimately company concentrated on only one client. That is the most negative point. ये एक ही client के ऊपर total निर्भर किया है, so naturally depend है in company. So come to the most interesting point. Order book is very interesting. 930 crores का ऑर्डर था ये पहले, अभी एक के बाद ऑर्डर मिलते जा रहा है। ब्लूम एनर्जी का एक ही क्लाइंट का ऑर्डर है 386 करोड़ का, दूसरा है क्लीन एनर्जी का 226 करोड़ का। इनके साथ एरोस्पेस काम चल रहा है। इनका और भी ढेर सारे क्लाइंट है, इंक्लूडिंग राफेल है, इनके साथ है IMI सिस्टम, ये भी चल रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को, क्यों मैनेजमेंट बोल रहा है वेरी इंटरेस्टिंग। मैनेजमेट टारगेट किया 2028 2029, जो बोल रहा है अराउंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आने वाला है, 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आने वाला है फाइनेंशियल 2026-27। और एबिटा डी अराउंड आप सोच सकते हैं, नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अराउंड 21% ये है। सो ये भी वेरी गुड सिचुएशन में। नेक्स्ट 3 इयर्स का प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो निकल के आया है कॉन कॉल में बोला है, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज 30% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू आने वाला है। एंड ह्यूज लेवल का ऑर्डर बुक अभी हो गया है, 1500 टू 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी है। सो इनका जो टारगेट है फाइनेंस 2026 अराउंड 25% ईयर ऑन बेसिस, फाइनेंस 2027 इनका है 30%, एंड 28 में इनका रेवेन्यू आ रहा है अराउंड 30% रेवेन्यू आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी। इनका फंडामेंटल इज नॉट वेरी गुड, बट अल्टीमेटली कंपनी बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इनका। स्पेस रिसर्च के अंदर रिसर्च काम चल रहा है इनका। सो आप सोच सकते हैं, आप ऐसे गेस कर सकते हैं फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा करेगा। सो ये इतना पॉजिटिव लेके आज का ये कंपनी